Welcome to a brand new episode of Just Drive. I'm Ahmed, and today that I want to mention something very important, something that we have been saying for the past few weeks. Just recently we took Just Drive team and we all of us together went to कहते हैं जिसको कराची का हब जो है खालिद बिन वलीद रोड, वहाँ पे हम गए थे. एंड जनरल people sometimes stop me and tell me that I am very biased towards Japanese cars, यानी कि मैं सिर्फ जापानीज गाड़ियों की तारीफ़ें करता रहता हूँ और पाकिस्तानी गाड़ियों को और मैन्युफैक्चरर्स को काफ़ी डिस करता हूँ. बट द पॉइंट इज़ कि ये चीज़ इंडोर्स हो गई थी व्हेन यू वेंट टू द मार्केट. द जनरल ओपिनियन एंड द जनरल ये कहते हैं ना कि वोट अगर डाला गया, हमने जितने भी शोरूम से बात की, जितने भी एक्सपर्ट से बात की, दे ऑल सेड that Japanese cars are being sold more in the market. उनकी डिमांड ज़्यादा है. It's only because obviously they provide quality and they provide value for money. It's as simple as that. The car I'm standing with right now is also a Japanese car. It's one of those cars. I really like this car. It's a personal favorite. It's the Toyota Belta. अच्छा, अब ये गाड़ी की अच्छी बात इसमें ये है कि एक और चीज़ जापानीज़ गाड़ियों में जो आती है वो ये आती है कि they have a variety of engines you can put in your car. This is a 1000cc car. इसी में बेल्टा में ही सेम बॉडी में you get 1300cc and you get a 1500cc. So you have a choice. To start with, what I want to mention about this car, which is very unique, is पाकिस्तान में I think अभी तक कोई ऐसी गाड़ी नहीं थी जो 1000cc हो और हैचबैक ना हो. मतलब मीनिंग दैट दिस कार हैज़ अ डिगी. इस गाड़ी में पूरी एक डिगी दी हुई है, प्रॉपर सेडान शेप है, बट 1000cc इंजन. द ओनर्स हैव बीन टेलिंग मी दैट दिस कार 1000cc है और ऑब्वियसली 3 सिलेंडर, बट ओनर मुझे कहते हैं कि ये 18 से 22 किलोमीटर पर लीटर देती है. इट वाज हार्ड टू बिलीव, बट एनीवे आई थिंक ऑब्वियसली अब उन्हें रखी हुई है तो प्रॉब्ली दैट्स हाउ इट वर्क्स. There's nothing much to say about the car. The looks are very nice. It's a very cute looking car. It looks more or less like the city. मतलब वही उसी तरह की है, लेकिन बात वही है कि at the end of the day it's Japanese. They've given us quality rather than जिस तरह local manufacturers होते. आगे से lights और पीछे से lights. I think the cutest thing about the car are the headlights and the backlights. उसके अलावा I haven't really sat inside, so I don't know कि अंदर से कैसी है, कितनी comfortable है. But from the outside it's very nice. Another thing that I found very amusing was the fact that काफ़ी जो showrooms वाले थे when we went to take the survey, they said कि another reason, मतलब ये कभी मैं तो इस तरह की reason को ना accept करूँ, लेकिन one of the reasons Japanese गाड़ियाँ इतनी बिकती हैं क्योंकि local manufacturers जो हैं वो कलर वैरायटी नहीं देते. अब ये कलर देखें, I think मेरे ख्याल से किसी पाकिस्तानी गाड़ी में कलर हो ही नहीं सकता, वो कभी बना भी नहीं सकते. यही बात है ना कि ये एक रीज़न है. मतलब आप सोचें कि आई वुड नेवर बाय अ कार फॉर इट्स कलर, बट एनीवे सम पीपल डू दैट. तो ये यूनिक कलर है. द कार इज नाइस लुकिंग. दे पुट इन रिम्स. ये एक्स्ट्रा ज़रा जो लगा हुआ है वो रिम्स वगैरह लगे हुए. छोटी सी गाड़ी है, वेरी लुक्स वेरी नाइस, लुक्स कंफर्टेबल टू ड्राइव. But obviously that once I drive the car and sit inside and take a drive and see how it is, that I'll be able to tell. So let's go and take a drive. अंदर चल के बैठते हैं and we'll talk more about the interior when we're inside. Okay, so I'm sitting inside the Toyota Belta, which is 1000cc. इसमें 3 मॉडल्स आते हैं. I mentioned before 1000, 1300 and 1500. This is the 1000cc model. It's I mentioned earlier कि 3 cylinder. I'm sorry, I made a mistake. ये 4 cylinder गाड़ी है. And obviously 4 cylinder 1000cc, it has to be efficient on fuel. The owners claim that it gives about 18 to 22 kilometers depending on your drive on 1 liter of petrol. That's amazing because आजकल जिस तरह की पेट्रोल की प्राइसेस हुई हैं, मुझे लगता है मुझे ये बेल्टा ही लेनी पड़ेगी. बहरहाल गाड़ी के अंदर बैठे हुए relatively मतलब obviously ये अगर देखा जाए, अगर हम इसको सेडान से कंपेयर करते हैं तो it's a smaller car from inside. But ये कि I'll mention one thing on the other hand कि smaller है, लेकिन it is much more beautiful than any other 1000cc car that I've seen. Latest width is nice, but this car is better. I think this car has a better look to it. It's got a good कहते हैं ना वो ड्राइविंग पोजीशन बहुत अच्छी है इस गाड़ी की. when I'm sitting I can see everything. बस वही है कि सिटी वाला सीन है कि bonnet is completely invisible, मतलब वो क्योंकि इसका शेप इस तरह का है तो इतना नज़र नहीं आता. Sitting inside, to start with the interior first and then I'll go on to the next things.
इंटीरियर इज ब्लैक एंड बेज, दो कलर में. नाउ आई डोंट नो रियली कि अगर 1300-1500 में इंटीरियर डिफरेंस आता है. आई नो कि यहाँ पे लिटिल बिट चेंजेस, लाइक इसका स्पीडोमीटर जो है सिर्फ स्पीडोमीटर दिया हुआ है, आरपीएम नहीं दिया हुआ. एक 1300-1500 में आरपीएम भी आता है. उसके अलावा दी स्मॉल चेंजेस ऑन द बटन्स हियर एंड देयर. उसमें एक ही बटन है, इसमें 3-4 बटन दिए हुए हैं. अच्छा, एक चीज़ ये जो जापानीज़ गाड़ी के बारे में मुझे बहुत पसंद है इज़ नेविगेशन. दीज नेविगेशन ऑब्वियसली ये चलते नहीं है. आप देख रहे हैं जापानीज़ वो बना हुआ है, क्या कहते हैं, जापान का मैप बना हुआ है, और गाड़ी जब वहाँ से आई थी तो उसके बाद ये चलना ही बंद हो गया. मतलब यहाँ इट डजंट वर्क हियर. बट एनीवे, उसके अलावा यूँ यहाँ पे देव ऑल्सो इसमें नेविगेशन के अलावा सारे ऑप्शन भी दिए हुए होते हैं. इसमें आई डोंट नो अगर दिए हुए, लेकिन वैसे डिस्क चेंजर ब्ला 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 इट्स ऑल देयर. बड़ी गाड़ियों में यूजुअली ये भी होता है कि आप एसी वगैरह को भी यहीं से कंट्रोल कर सकते हैं. इंटीरियर इज़ वेरी नाइस, इज़ वेरी वही बात है कि दिस न्यू फैशन ऑफ हैविंग बिगर डैश एंड स्मॉलर बॉनेट इज़ ओनली बिकॉज ऑफ सेफ्टी फॉर पीपल हु डोंट नो. ये जो लोग कहते हैं कि शेप्स क्यों चेंज हो रहे हैं, एक तो एरोडायनामिक की वजह से भी होता है, बट बेसिकली इस पिलर को लंबा करने के लिए ये जो जितनी गाड़ी में आप देख रहे हैं ये पिलर लंबे किए जा रहे हैं, और बॉनेट छोटे एंड डैशबोर्ड बड़े किए जा रहे हैं. वो इसलिए किए जा रहे हैं कि अल्लाह ना करे गाड़ी का एक्सीडेंट होता है तो जो ड्राइवर शुड बी सेफ. सीट्स आर कंफर्टेबल, डक सीट्स हैं, आर्म रेस्ट भी दिया हुआ है. इट्स अभी ऑटोमेटिक है, ये तो बहुत कम जापानीज़ गाड़ियाँ मैनुअल आती हैं. उसके अलावा द डोर्स एंड एवरीथिंग, सी आई डोंट नीड टू मेंशन अगेन दिस इज क्वालिटी, दिस इज प्योर क्वालिटी. लुक एट दीज बटन्स, लुक एट दीज वेंट्स, लुक एट द स्टीयरिंग देन अगेन इज द एग्जैक्ट स्टीयरिंग दैट वी डिड फ्रॉम वी सॉ फ्रॉम द विट्स. तो सही है, मुझे कोई इतना खास पसंद नहीं है, बस सही है, इट्स ओके. एयर बैग्स दिए हुए होते हैं. सेफ्टी इज ऑब्वियसली फर्स्ट इन जापानीज़ कार्स, द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज सेफ्टी. तो सेफ्टी ऑब्वियसली उनके लिए सबसे ज़रूरी होती है. एयर बैग उन्हें हर जगह पे दिए हुए होते हैं. सीट बेल्ट हर गाड़ी में होती हैं. ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, बिकॉज अगर ये चीज़ें नहीं होंगी तो बंदा मतलब सेफ्टी कैसे रहेगी. उसके अलावा हेडरूम इज़ क्वाइट ऑल राइट, इट्स प्रीटी ऑल राइट. 1000 सीसी गाड़ी में तो आई थिंक इट्स डेफिनेटली द बेस्ट कार हेयर. मार्केट में 1000 सीसी और इससे अच्छी गाड़ी है ही नहीं. मतलब अगर आप देखा जाए तो क्या वेट्स को कंपेयर करेंगे, सिटी कह रहा हूँ, वेट्स को देखें या फिर आप कल्टर्स को देखें, वो तो बिल्कुल ही छोटी है. एटलीस्ट में एक ऑप्शन तो है कि डिग्गी भी है, और प्लस अंदर से इट्स मोर स्पेशियस. इफ आई कंपेयर दिस कार टू 1000 सीसी कार, any car in the market, this is the best car to get so far that I've seen. Maybe कोई गाड़ियाँ होंगी जो मैंने कवर नहीं की हुई, लेकिन अगर आप इसको सेडान्स में लेके जाते हैं, अगर आप इसको कंपेयर करना शुरू करते हैं सिटी से, 13 सीसी और गाड़ियों से या और भी सेडान से अगर आप कंपेयर करना शुरू कर देते हैं, तो उससे ये प्रॉब्लम होगा कि गाड़ी ऑब्वियसली थोड़ी सी it'll fall short, I think, because obviously it's a smaller car, but otherwise 1000 cc, I don't know, I haven't driven it yet. I will drive it and see कि actually 1000 cc इंजन इतनी बड़ी बॉडी को कैसे उठाता होगा, कि जब ये सेम गाड़ी जो है 15 cc इंजन में भी सेम बॉडी 15 cc इंजन में होती है. मे बी दैट कार विल बी ओवर पावर्ड या फिर ये अंडर पावर्ड होगी. ये तो चला के ही पता चलेगा, और कंफर्ट वगैरह चला के पता चलेगा. सो लेट्स गो टेक अ ड्राइव एंड सी ये गाड़ी कितनी खूबसूरत है.